Okay. So we were looking at yesterday to some of the problems that we encounter while applying machine learning algorithms, and yesterday we looked at the problem of regularization and the ways to avoid that. The first way was L2 weight regularization, and what we did was to add a term to the cost function. So we have a cost function. For example, let's discuss or revise the cost function for linear regression, which is this one. And we added to this term a regularization term, which was basically I goes from 1 to n theta j, or wj. So we added this term to the cost function, and then we try to minimize this cost function. And what we want is that the magnitude of all the parameters of all the weights, they are as small as possible. And this is going to give us a regularized solution. And then we also have this regularization parameter lambda, which we can adjust to get a balance between this term, which is fitting to the data, and then the regularization term. Okay, and in PyTorch, it is very easy to add the weight regularization. You just have to mention that in the optimizer that you are using. For example, if you are using the stochastic gradient descent optimizer, there is the argument weight decay, which you can change. The value of that you can change to maybe 0. Then you are doing no regularization. If you change it to 1, for example, or 0.01, then you are doing weight regularization with the value of lambda is equal to 0.1. The second method that we discussed was dropout. Dropout is simply to randomly pick some number of neurons from a layer and drop them in that particular iteration. And what it will do, it will force the neural network to use all the neurons to make prediction. Okay, and that is how we are going to avoid overfitting by obtaining a robust prediction, which is going to use the whole network and not focus on few neurons or few layers. The third method was the early stopping. So usually when we do the training, this is what we observe, that the training error is going to decrease as you increase the number of epochs. And the testing error or the validation error is going to decrease, but at some time it is going to increase after at a time when you start to do overfitting. So you keep track of the training error and test error, and as soon as you realize that you are as this gap is diverging, between training and test error, you stop there. You stop the training. Okay. Okay, so here are the 3 methods say for the overfitting, to avoiding the overfitting. Now we are going to look at model selection. That if you have multiple hypotheses means we can have different scenarios. For example, in the first hypothesis, you have the data term. Sorry, I mean in the cost function basically. So in the first hypothesis, for example, you are not doing any regularization, and in the second hypothesis you are doing some regularization. In the third model, you are using more regularization with the lambda parameter set to a high value. So these are different models, and how do you say that which one is better? Secondly, you can also have a model in which you have one hidden layer, another model in which you have 2 hidden layers, and so on. Another model in which you have a dropout of p is equal to 0.1. Another model where you have a dropout of p is equal to 0.5. So all these are different models, right? So how do you decide that how do you decide amongst all these different models के कौन सा आपने choose करना है? So remember, there are 2 things going on here. एक तो है आपके weight parameters, theta कह लें या इनको w कह लें, जो कि आपके that will determine your hypothesis. The second are जिनको हम बात कर रहे हैं hyperparameters.
Hyperparameters can be, things like the lambda of the regularization or the P of dropout. Similarly, you can have other values, let's say the learning rate alpha of your optimizer, and there are other such parameters that you need to tune. So all these are your parameters. And then these are the parameters of your model जो कि आपने जो weights हैं आपके जो neural network के, and then so these are parameters, these are hyperparameters, right? उसके अलावा आपका number of layers कितनी होनी चाहिए, so let me also add that here, number of layers, for example hidden layers, number of neurons in each layer, so all these make up a lot of different parameters that you need to tune. So this is for your these weights जो हम पहले जिनकी weights की बात कर रहे हैं, ये तो आपके neural network के weights हैं. But these are the things इनको हम कह रहे हैं कि by choosing a different parameter basically you have a different model. ठीक है कि अगर आपने number of layers एक में 3 है एक में 4 है, तो essentially you have a different model. तो अब आपके पास ये different जो hypotheses हैं, different models हैं, उनको कैसे select करना है, that will be the topic that we are going to discuss now. ठीक है, और उसके बाद ये दो बाकी topics हैं जिनको हम बाद में discuss करेंगे. तो let's jump to the portion where we are looking at model selection. Okay, model selection. The first thing is how do you evaluate hypothesis? Even before the coming to the model, हमने बात की थी दो तरह के parameters हैं. एक आपके पास हैं जो theta कह लें या w कह लें, जो weight vectors or the theta parameters, and then there are your hyperparameters. So let's first talk about your एक मॉडल है आपका, उसको आपने just one model, जिसमें आपकी सब values आपने fix कर दी हैं and you have not changed that. तो उसके and then you have done the training and you get some prediction. How do you evaluate that, one hypothesis that you have? The way, as we have been doing that in the labs and we have discussed that before also, the way to do that is to split the data into two groups. One, you are going to keep it for the training, the remaining for testing. और आप अपने जो weights हैं, these parameters, और ये आपके theta हम कह लें या w कह लें, you are going to learn on your training set. ठीक है, बाकी आपके हाइपर, फॉर दिस एग्जांपल आई एम सेइंग कि जो हाइपर पैरामीटर्स हैं दे आर फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि लैम्डा इज 1, नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं हिडन लेयर्स जो हैं वो 2 हैं, आपकी लर्निंग रेट जो है अल्फा वो लेट्स से 0.001 है. सो ऑल दीज आर फिक्स्ड. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नाउ लर्न आर योर वेट्स और योर पैरामीटर्स. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे योर ट्रेनिंग सेट टू लर्न द वेट्स as we have been doing. Now once we have done the learning, now is the time to evaluate your model, and we are going to evaluate it on the test set. What is evaluation mean? Evaluation means कि जो भी आपने model अभी learn किया है using your training set, वो कितना आपको error देगा on a new set, या उसका generalization error कितना है. ठीक है, ट्रेनिंग सेट पे ही आपने उसको ट्रेन किया, ट्रेनिंग पे आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसी पे तो आपने ट्रेन किया, तो उसमें तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा. तो दैट इज़ वाई वी यूजुअली स्प्लिट आवर डाटा इनटू 2 पार्ट्स, इन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग या वैलिडेशन कह लें उसको. वी ट्रेन टू ऑब्टेन आवर थीटा और योर वेट वेक्टर्स ऑन द ट्रेनिंग सेट, एंड देन वी इवेल्युएट ऑन द टेस्ट सेट. ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई है? ओके, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि आपने दो में इसको डिवाइड करना है. एंड यूजुअली व्हाट इज योर गेस के कितना हमें स्प्लिट कितना करना चाहिए? ठीक है, तो लेट मी आस्क यू फ्रॉम समवन. मरियम अली, आपके ख्याल में ये जो स्प्लिट है इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, इसकी क्या रेशियो होनी चाहिए? कितना हमें परसेंटेज ऑफ डाटा ट्रेनिंग में रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए हमें टेस्टिंग में? मरियम Sir, 70-30. ठीक है, आई मीन 70-30 इज अ राइट परसेंटेज कि आप इसको 70 ट्रेनिंग में रख लें और टेस्टिंग में 70 रख लें. However, if you are working with a huge data set जिसमें let's say आपको 10 million points हैं, तो उसमें 70-30 is not a good division. एक छोटे data set में in 1000
70-30 is fine. लेकिन usually nowadays we have data set which are in in millions. तो उस केस में even if you have 95% for training and 5% for testing, that is also enough. Although you have to randomly choose kind of course, लेकिन even this will give you a good will allow you to get a good testing error. क्योंकि 5% of 10 million is also a huge number, ठीक है. लेकिन आपके पास ऑलरेडी अगर let's say 5000 अगर एग्जांपल्स हैं, तो उसमें अगर सिर्फ 5% रखते हैं तो वो आपका अमाउंट कम आती है. 30 you need to maybe 20% कर लें, 30 कर लें. लेकिन if you have the data set which is really big, then even a smaller percentage of data set for validation is good enough. ठीक है कि आप ट्रेनिंग में ज़्यादा रखें ताकि you get a good model. ओके, तो ये तो था just some guidelines of the number of the percentage of this split. Okay, what is the drawback? एक split का drawback क्या है? More specifically, I'm talking about smaller data sets. उसमें what is the drawback है? अगर आप 70% रखते हैं ट्रेनिंग में, 30% रख रहे हैं टेस्टिंग में, तो what do you think is the drawback? सर ट्रेनिंग डेटा कम हो जाता है. ठीक है, ठीक है. और क्लियर नज़र आ रहा है कि हमने 30% सेपरेट हटा दिए, तो ऑलरेडी डेटा सेट स्मॉल था, तो आपके पास डेटा सेट जो है और कम हो गया. तो इसको इससे बचने का तरीका क्या है कि वी यूज़ दिस टेक्निक विच इज़ कॉल्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. तो व्हाट इज़ दी के एंड दिस. ओके, एक तो आपने इसका ड्रॉबैक बता दिया. सेकंड ड्रॉबैक भी है, ये भी है कि समटाइम इट कैन हैपन कि ऑल्दो यू आर रैंडमली चूजिंग दीज पॉइंट्स, बट इट कैन हैपन कि रैंडमली आपने ऐसे पॉइंट्स चूज़ कर लिए जो कि आसान थे उन पे क्लासिफिकेशन करना, या ऐसे चूज़ कर लिए जिन पे डिफ़िकल्ट था क्लासिफिकेशन करना. तो इसलिए यू मे गेट दी टेस्ट एरर विच विल नॉट बी डिपिक्टिंग द राइट थिंग. या तो वो आपको कह देगा टेस्ट एरर बहुत अच्छा है, या कह देगा बहुत गलत है. तो विच मे बी राइट क्या है, वो अनफॉर्चुनेटली आपने स्प्लिट ऐसा कर दिया था रैंडमली कि आपका टेस्ट एरर या तो बहुत बुरा आ रहा है या बहुत अच्छा आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑल्सो कि अगर आप एक दफ़ा आप स्प्लिट करते हैं तो यू मे एंड अप इन दिस सिचुएशन. तो इससे बचने का तरीका क्या है, is this k-fold cross validation. It is a very simple technique. What you do is you divide your data set into k different parts. For example, आपके पास ये डेटा सेट है, उसको आपने लेट्स से आपके पास k is 4 now, तो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. 4 पार्ट्स मीन के ये आपने 4 पार्ट्स में, लेट्स लुक एट द फर्स्ट दिस इज योर होल डाटा सेट. इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. आप क्या करेंगे कि पहली दफ़ा आप इसको जो k-1 है, जो 3 जो पार्ट्स हैं उनमें आप करेंगे, उनको यूज़ करेंगे फॉर ट्रेनिंग. ठीक है, एंड यू विल टेस्ट ऑन 1 पार्ट in the first experiment. The second experiment you're going to take the second part and do the training on the remaining 3 part. इस इन 3 पार्ट्स पे आप ट्रेनिंग करेंगे और इस पे आप टेस्टिंग करेंगे. इसको टी में लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको टी लिख देता हूँ. थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने इन सब पे जो 3 पार्ट्स से डिफरेंट 3 पार्ट्स उन पे ट्रेनिंग की और इस पोर्शन पे आपने टेस्ट किया. फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रिमेनिंग आपने पोर्शन पे ट्रेनिंग की, जो रिमेनिंग 3 पार्ट से एक जो पार्ट था उसके ऊपर आपने टेस्ट कर दिया. ठीक है, और फाइनली योर फाइनल एरर वुड बी द एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 एरर्स. तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपने सारे पोर्शंस को, सारे डाटा को यूज़ भी किया है ट्रेनिंग सेट में भी, और साथ ही साथ आपने टेस्ट सेट के लिए भी एक पोर्शन यू हैव दैट. तो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ मोर एक्यूरेट test error. Okay, this is called k-fold cross validation. To recap, you divide your data set into k parts, and you do then k experiments. In each experiment, you're going to use k-1 folds for training and the different fold for testing, and then you're going to do that for 4 experiments. उसके बाद average आप उन 3 दो compute कर लेंगे to get the overall error. ओके, सो k-fold क्रॉस वैलिडेशन, ये सबको समझ आ गया. तो इसी की एक वेरिएशन है लीव वन आउट.
ये भी यूज होता है जिसमें your k is basically equal to n, where n is the total number of examples you have. Let's say आप पूरे डाटा सेट में आपके पास अगर 100 एग्जाम्पल्स हैं तो आप 100 ही डिवीजन करेंगे और 100 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हर एक्सपेरिमेंट में 99 आप जो एग्जाम्पल में ट्रेनिंग करेंगे और सिर्फ एक एग्जाम्पल पर टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप जो बाकी 99 पे दोबारा करेंगे ट्रेनिंग और एक डिफरेंट एग्जाम्पल पे टेस्ट करेंगे, एंड सो ऑन यू आर गोइंग टू कीप दैट, repeat that for 100 times. ठीक है, that is leave one out, which is extreme case of k-fold cross validation, but you can consider it as also a k-fold cross validation, and it is called leave one out क्योंकि आप सब हर दफा एक ही एग्जांपल को लीव कर रहे हैं, बाकी सब पे आप ट्रेनिंग करें हर एक्सपेरिमेंट, हर डिफरेंट रन ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे। ओके, एनी क्वेश्चन? सर ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ ईपॉक है? नहीं, एक्सपेरिमेंट का मतलब ईपॉक नहीं, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट इज द सेम एक्सपेरिमेंट जो आप इस पे अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यू आर रनिंग इट फॉर मल्टीपल ईपॉक्स, और आप यू आर गेटिंग अ फाइनल प्रिडिक्शन इस पोर्शन पे। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो नॉर्मली आप करते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन ईपॉक। ठीक है, तो हर एक्सपेरिमेंट इज अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जिसमें आप यू आर गोइंग टू रन योर एल्गोरिथम फॉर मल्टीपल ईपॉक्स एंड गेट द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर योर वेट पैरामीटर्स, एंड देन यू डू द टेस्ट एरर ऑन दिस पार्ट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, आपने डाटा सेट चेंज कर लिया, यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। डाटा सेट चेंज करने से मतलब है कि नाउ यू हैव केप्ट दीज 3 folds for training and this one for testing. अभी आप you're going to start from the beginning और दोबारा आप मल्टीपल epochs को यूज करते हुए ट्रेन करेंगे इस डाटा सेट में। ठीक है, और ये इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट कि आपने एक्सपेरिमेंट में एक ही epoch करना है। सो ईच एक्सपेरिमेंट इज अ होल एक्सपेरिमेंट जो कि आप नॉर्मली करते हैं फॉर ट्रेनिंग। सर अगर हम ट्रेनिंग के दौरान हर ईपॉक पे टेस्ट सेट बदल दें जिस तरह हम यहाँ पे बदल रहे हैं, तो फिर भी हम सिमिलर रिजल्ट्स ले सकते हैं या फिर तब नहीं चलेगा? नहीं, फिर नहीं चलेगा क्योंकि वो जो आप चेंज कर रहे हैं तो इट विल गिव यू सम रैंडम एरर, वो ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यू चेंजिंग दी डेटा सेट, तो दैट इज नॉट राइट। वन ईपॉक शुड बी अ होल स्वीप थ्रू दी डेटा सेट जो कि आपने फिक्स कर दिया है। आई मीन इनिशियली आप रैंडमली चूज कर लिया, उसके बाद यू फिक्स द डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, फिर आप चेंज नहीं करते कि दरमियान में आप कह दें चलिए ये ट्रेनिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, यू डू नॉट चेंज। So that way you're going to get some random error, वो आपको एनालिसिस में फिर आपको किसी काम का नहीं होगा वो। ओके, ये तो था evaluating hypothesis when you have fixed the hyperparameters। तो यहाँ तक तो अभी हमने सिर्फ ये बात की है कि अगर आपके पास एक ही मॉडल है जिसमें आपने हाइपर पैरामीटर सारे फिक्स किए हुए हैं एंड उसको आपने इवेल्यूएट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो उसको आप करेंगे बाय के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, okay, now we come to the part where you have multiple hypotheses, or when you need to fine tune your hyperparameters also, like your lambda, your dropout rate, your number of layers, learning rate, etc. So if you need to fine tune that, तो उसको अभी किस तरीके से किया जाए, या उसके लिए भी हम अगर यही टेक्निक यूज करें कि आप इस हर एक्सपेरिमेंट को यू स्प्लिट द डाटा इनटू 2 एंड देन ट्राई टू फाइन ट्यून योर डाटा सेट, तो वही अगर टेक्निक हम हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग के लिए भी यूज करें तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? इफ यू, तो द क्वेश्चन इज के यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे वो तो ये हम बात कर रहे थे कि यू नीड टू ऑप्टिमाइज and you learn the weights and your weights, उसके लिए आपने ये split किया था training testing में। Now the question is you also need to now fine tune your hyperparameters. Let's just focus on one hyperparameter की बाकी let's say fixed है। आपने lambda को देखना है कि इसकी different values हैं, no regularization, some regularization, some more regularization। तो these are 3 values जिनको आपने चूज करना है कि विच वन ऑफ दीज इज बेटर। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप लेमडा 0 रखें
फिर आप देखें टेस्ट एरर में आप lambda 0 रख के ट्रेन करें इस डेटा सेट पे, ठीक है, और यू गेट सम पैरामीटर्स corresponding to lambda is equal to 0, ठीक है, उसको आपने टेस्ट कर लिया टेस्टिंग डेटा पे, यू गेट सम एरर, लेट्स से कि उसको ई कह देते हैं, E1 कह लें, एंड दिस इज आल्सो थीटा 1 के फर्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स। फिर आपने चेंज कर दिया थीटा लैम्डा को 1, अभी दोबारा आपने ट्रेनिंग की ऑन दिस ट्रेनिंग सेट, यू गेट डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स, क्योंकि लैम्डा आपका चेंज है तो ऑफ कोर्स यू गोइंग टू गेट डिफरेंट पैरामीटर्स। उस पर आपने टेस्ट सेट पे दोबारा एरर कंप्यूट किया और ई अनदर एक एरर आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। आपने फिर लैम्डा को चेंज किया 2 पे, यू ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग सेट, यू गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ जो पैरामीटर्स, और फिर आपने टेस्ट सेट पे चेक किया और आपका ये एरर आ गया, ठीक है। आपने देखा कि मेरा जो एरर आ रहा है लैम्डा 0 पे वो सबसे कम आ रहा है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू यूज लैम्डा 2। तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस होल अप्रोच? जी, what is wrong with this? Let me give you a hint. हिंट ये है कि ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, इसको यूज करके यू फाइंड थीटा, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल थीटा। ऑफ कोर्स आप इस ट्रेनिंग सेट को यूज करते हैं, एंड देन टू गेट द जनरलाइजेशन एरर यू आर यूजिंग द सेम ट्रेनिंग सेट। तो यू कैन इजीली सी के इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, you will not get a real estimate of your generalization error. मे बी आपने ओवरफिट कर दिया तो आप कहेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल यू टेस्ट इट ऑन द टेस्ट सेट। अभी हम क्या कर रहे हैं टू गेट द हाइपर पैरामीटर्स के वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट वैल्यूज फॉर लैम्डा, एंड देन वी आर ट्राइंग टू सी कि टेस्ट सेट पे क्या एरर आ रहा है, बट वी आर देन फाइनली डिसाइडिंग कि ये बेहतर है क्यों बेस्ड ऑन द एरर वी आर गेटिंग ऑन द टेस्ट सेट। तो क्या ये जो एरर आपके पास आ रहा है E1, क्या ये एक राइट एस्टीमेट है आपके जनरलाइजेशन एरर का? सर अगर E1 टेस्ट सेट का एरर है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप लाइन ऑफ रीजनिंग को आपने देखा नहीं है कि आपने पहले लैम्डा 0 को BCP चेक किया है, ठीक है, ये तो हमने नाम दिया है टेस्ट सेट, इसको ट्रेनिंग सेट, जस्ट फॉरगेट कि ये एक सेट, ये एक पोर्शन है डाटा का, ये दूसरा पोर्शन है डाटा का। इस पोर्शन के डाटा पे आपने लैम्डा 0 की वैल्यू एरर की चेक की, लैम्डा 1 की चेक की, लैम्डा 2 की चेक की, और उसी पे आप कह रहे हैं कि ठीक है जी लैम्डा 1 इज़ फाइन, ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इट्स सिमिलर टू थीटा कि आपने थीटा इसी पे चेक किया वैल्यू, और इसी पे आप कह रहे हैं कि जो एरर आ रहा है वही मेरा फाइनल एरर है। आप बात समझ रहे हैं कि यू कैनॉट यूज द सेम पोर्शन ऑफ डाटा सेट और उसी पे जो आपका एरर आ रहा है उसी को लेके आप ये नहीं कह सकते दिस इज अ गुड estimate of my generalization error या test error. Okay, so this is wrong with this approach कि आपने ये तीनों वैल्यू जो है लैम्डा 0, लैम्डा 1, लैम्डा 2 की इसी डेटा सेट पे उन पे एरर कंप्यूट किया है, और इसी को फिर आप देख के आप कह रहे हैं कि दिस इज the right value. So instead what you should do is to actually do a 3-way split. इस पे आप करेंगे to learn your parameters, this one to fine tune your lambda or other parameters, and finally जब आपने मॉडल सेलेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन दीज टू, तो फिर आप कहेंगे कि जो टेस्ट एरर है यू नीड टू देन हैव अ सेपरेट डाटा सेट, सेपरेट पोर्शन, जिस पे आप कहेंगे कि दिस इज माय जनरलाइजेशन एरर, या जो एक्चुअल एरर है वो आपके मॉडल का ये है, ठीक है। So this is the way you need to go about it. कि अगर आपने हाइपर पैरामीटर्स भी ट्यून करने हैं और आपने मॉडल सेलेक्ट करना है फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स, तो देन यू नीड टू स्प्लिट द डाटा इनटू 3 पार्ट्स। ट्रेनिंग, इसको वैलिडेशन कह लें, एंड द थर्ड इज द टेस्टिंग। ट्रेनिंग पे आप ट्रेन करेंगे टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ योर पैरामीटर्स थीटा, इसको आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ योर लैम्डा, जैसे आपने कह दिया लैम्डा 0 ठीक था,
लेकिन अभी आपने जो एरर जनरलाइजेशन एरर फाइंड करना है वो नए डाटा सेट पे करना है, क्योंकि इस पे तो आपने सारे ऑलरेडी यूज़ किए हैं वैल्यूज़ लैम्डा की, वो आप यूज़ करेंगे इसका, एंड यू विल रिपोर्ट द एरर ऑन दिस कि ये मेरा जनरलाइजेशन एरर है, दिस विल बी योर फाइनल एरर। तो वी नीड टू डू द 3-way स्प्लिट, ठीक है। ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट। ट्रेनिंग सेट क्या है? सेट ऑफ एग्जांपल्स यूज फॉर लर्निंग टू फिट द पैरामीटर ऑफ द क्लासिफायर। पैरामीटर ऑफ द क्लासिफायर क्या है? योर थीटा, या जिनको हम डब्ल्यू भी कह देते हैं। तो ये इनको हम यूज करेंगे, ट्रेनिंग सेट को यूज करेंगे टू लर्न योर थीटा एंड डब्ल्यू। Validation set, a set of examples used to tune the hyperparameters of a classifier. For example, hidden units, stopping criteria क्या हो, lambda क्या हो, all these are your hyperparameters you are going to fine tune on this data set. इसके data set पे आप मुख्तलिफ values के साथ आप टेस्ट करेंगे, जो काम आएगा उस मॉडल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, and then finally you're going to report on the test set. Okay. Then after accessing the final model on the test set, you must not tune the model any further. ठीक है, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट है। क्योंकि इफ यू स्टार्ट फाइन ट्यूनिंग, तो फिर आप में भी जो आप रिपोर्ट कर रहे होंगे एरर, वो ओवरफिटेड एरर होगा, एंड इट विल नॉट बी अ राइट एस्टिमेट ऑफ योर ऑफ द प्रेडिक्शन एक्यूरेसी या ऑफ द राइट ऑफ द ट्रू एरर जो कि आपके मॉडल का है। ओके, तो then this is the procedure. Divide the available data into training, validation and test set. Select architecture and training parameters. जो भी आपने hyper parameters select कर लिए. Train the model on training set. Evaluate the model using the validation set. Repeat step 2 to 4 using different architecture and training parameters. Different architecture training parameters का मतलब है वही आपने जो hyper parameter tuning करनी है। जब आपने चेंज किया, देन यू नीड टू रिपीट स्टेप 2 to 4 कि दोबारा से आप ट्रेन करेंगे, दोबारा से आप उसको वैल्यूएट करेंगे वैलिडेशन सेट पे, और बेस्ड ऑन देन दिस स्टेप यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट मॉडल बेस्ड ऑन जो वैलिडेशन सेट पे जो आपको बेहतरीन जिसका आपको रिजल्ट आ रहा है, एंड देन यू आर गोइंग टू असेस दिस फाइनल मॉडल यूजिंग द टेस्ट सेट। और आप जो रिपोर्ट करेंगे एरर, वो करेंगे इस टेस्ट सेट पे, which you will not touch during the whole training process. फाइनल सिर्फ आखिरी टाइम पे जब आपने मॉडल को टेस्ट करना है, उसको आप यूज़ करेंगे टू रिपोर्ट द एरर। यूजुअली जितने भी कंपटीशन होते हैं मशीन लर्निंग के, दे आल्सो डू द सेम, दे गिव यू द ट्रेन सेट एंड दे गिव यू द वैलिडेशन सेट। Okay, you use these to train your model, select the architecture, hyper parameter tuning कर लें, they keep the test set with themselves, ठीक है। और जब आप उनको, और देन दे ओनली रिलीज दैट टुवर्ड्स द एंड जब आपने टेस्ट करना है, या दे विल हैव इट अ वेब इंटरफेस जहां आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ आप मॉडल रन करेंगे उनके डाटा सेट पे, एंड यू विल जस्ट सी द फाइनल एरर, ठीक है। दिस इज हाउ द मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन या इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो यू गो अबाउट इट। ओके, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है, आई होप। if no, please let me know. एक्सक्यूज मी सर। जी सर, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मेरी एक कंपनी है, वेबसाइट है, मेरे पास मिलियन ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, उस मिलियन टोटल एग्जांपल्स हैं, तो सर उसमें से मैं 9 मिलियन पे ट्रेन कर लेता हूँ, बाकी पे वैलिडेटर टेस्ट। लेकिन सर जब मैं प्रोडक्शन में जाऊँगा तो वो 1 मिलियन डाटा पे सर मुझे दोबारा ट्रेन नहीं कर लेना चाहिए अपना मॉडल, क्योंकि एट द एंड वो ज़ाया नहीं जा रहा अगर मैंने अपना मॉडल यूज़ करना है। देखिए, उसमें ये प्रॉब्लम है कि जब आप उसको उस पर दोबारा ट्रेन करेंगे, तो जो आपका टेस्ट एरर है वो आपकी राइट डिपिक्शन नहीं होगी, कि इट विल नॉट बी द राइट डिपिक्शन कि ये आपका एरर आपका क्या आ रहा है, क्योंकि वो फिर मे बी जो डाटा सेट आपके पास है, अगर आपने उसको यूज़ किया है फाइन ट्यून करने के लिए, तो जो भी आप एरर निकाल रहे हैं वो क्योंकि आपने उसी डाटा को यूज़ किया जो रिमेनिंग था, तो यू मे बी ओवर फिटिंग, ठीक है। बात कोई आती है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अर्ली स्टॉपिंग की, देखिए जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि आप कहेंगे कि व्हाई नॉट जस्ट कीप ऑन ट्रेनिंग जब तक आपको एरर जीरो नहीं आ जाता,
यू नो के वैलिडेशन एरर आफ्टर सम टाइम विल इंक्रीज, तो मे बी आप उसको यूज करते हैं तो यू आर डूइंग द सेम के यू आर इंक्रीजिंग योर टेस्ट एरर बाय इनकॉर्पोरेटिंग एवरी एग्जांपल दैट यू हैव। तो यू हैव टू फॉलो दिस मैकेनिज्म के, ताकि आपका जो रियल वर्ल्ड में नया डाटा सेट आएगा उसके ऊपर जो टेस्ट एरर है उसका राइट एस्टिमेट आपके पास हो। ठीक है, कि अदरवाइज तो आप अपने ऐसा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के ट्रेनिंग एरर तो जीरो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट द मेन इशू इज़ कि जो नया रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपकी आती हैं उस पर आपका मॉडल की एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए या एरर कम होना चाहिए। So in order to get a good estimate of that, you need to keep that test part separate, और उसको आप अपने ट्रेनिंग में incorporate ना करें। सर अगर मेरा टेस्ट एक्यूरेसी 95% आ गई है, मेरा मॉडल ऑलरेडी टेस्ट डेटा पे 95% एक्यूरेट है, उसके बाद मैं उसको टेस्ट डेटा पे ट्रेन करके उसको प्रोडक्शन में डाल दूँ, ये अप्रोच सही है? नहीं, फिर भी देखिए ना, वही वही मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से आपने ट्रेन किया, यू गेट 95% एक्यूरेसी। अभी आपने ये 95% एक्यूरेसी वाज ऑन द टेस्ट सेट जो आपने सेपरेट रखा हुआ था। अब आपने कहा ठीक है, मैंने तो ट्रेनिंग कर ली है और ये मेरा वैल्यू भी आ गई है, अब टेस्ट सेट तो फालतू पड़ा हुआ है, उसको मैं चलो साथ ही ट्रेन करके फिर मैं, बेशक ट्रेनिंग वही 95 रहेगी लेकिन उसको मैं इंक्लूड कर लूँ। लेकिन वंस यू डू दैट तो आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वंस यू यूज दिस टू ट्रेन तो आपका जो जो मॉडल है वो चेंज हो जाएगा, उसकी पैरामीटर्स वेट सब चेंज हो जाएगा। देन यू आर नॉट श्योर कि उस मॉडल की अभी एक्यूरेसी क्या है, उसको किस पे टेस्ट करेंगे आप? आपने टेस्ट सेट तो यूज कर लिया है, तो यू गेटिंग माई पॉइंट कि फिर आपने जब उसको इस टेस्ट को यूज कर लिया, यू हैव बेसिकली ऑब्टेन्ड अ न्यू मॉडल, उसकी पैरामीटर्स भी चेंज हो गए हैं, तो अब आप यू हैव नो वैल्यू जो आपको सही बता रही है कि 95 ही है, 96 है, 94 है, क्या है, क्योंकि यू हैव यूज ऑल योर टेस्ट सेट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, यू जस्ट कीप दैट सेपरेट, उसको आप यूज नहीं करेंगे टू रीट्रेन योर मॉडल। यस सर, थैंक यू सर। Okay, bias variance trade-off is a concept very similar to the overfitting, and or to some extent आप कह सकते हैं कि you can say the bias error to be the जो आपका अंडर फिटिंग जो प्रॉब्लम होती है, और इसी तरह जो वेरिएंस है यू कैन कॉल इट ओवर फिटिंग प्रॉब्लम जो आपकी आती है। बाय डेफिनेशन बायस एरर मींस के द एरर फ्रॉम द अजम्पशंस इन द लर्निंग एल्गोरिथम। अब देखिए, अगर आपका डेटा सेट जो है इस तरह का है, लेट्स से, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव डन, योर हाइपोथेसिस इज लीनियर, और आपका हाइपोथेसिस इज सिंपली दिस, and let's say ये हम वही एग्जांपल लेते हैं कि this is the size of the house and this is the price. You want to predict the price and you have assumed or taken a linear model. तो ये मॉडल इज़ वेरी सिंपल, ये आपकी एक रॉन्ग assumption है कि जो डाटा आपके पास है वो लीनियर है, तो इसकी वजह से आपके पास जो प्रिडिक्शन आ रही है इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ अंडर फिटिंग दी, और वो सही उसमें नहीं है, आपको नॉन लीनियर कब नहीं मिल रहा। तो ये इस एरर को हम कहेंगे बायस एरर, या इस जो प्रिडिक्शन एरर आपका आ रहा है इट इज़ बायस एरर, क्योंकि द assumptions you made about the data are wrong, या जो आपने लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ की है विच इज़ लीनियर हेयर, वो आपने गलत यूज़ की है, उसके assumptions गलत हैं। तो every error that you get from some wrong assumptions in the learning algorithm is going to give you the bias error. On the other hand is the variance. Variance is के error from sensitivity to small fluctuations in the training set. अब आपके पास एक मॉडल है विच इज़ फेयरली कॉम्प्लेक्स, और वो आपको, लेट्स से इसी एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसा का डाटा आपके पास है, तो इस पे देखिए, अगर आप इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स मॉडल तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी स्मॉल एरर। लेट्स से आपके पास आपको एरर दे रहा है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, इट इज़ ऑब्वियसली ओवर फिटेड, वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे ओवर फिटिंग का आपको ये नज़र क्लियर आ रहा है। इसमें आप अगर आपके कोई एक एग्जांपल रिमूव कर दें, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से रिमूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, सॉरी, let's remove
लेट्स रिमूव दिस एग्जांपल। अभी आपका जो आएगा जो जो प्रिडिक्शन है, जो मॉडल है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि आपका जो मॉडल है इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द ट्रेनिंग सेट, कि उस पर ओवर फिटिंग भी उसकी हो रही है, कि बाय लिटिल फ्लक्चुएशन या चेंजिंग या रैंडमली एडिंग सम नॉइज टू ट्रेनिंग सेट, आपका जो मॉडल है वो कम्प्लीटली अब्रप्टली चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ ओवर फिटिंग ऑल्सो। तो इसकी वजह से जो भी आपका एरर आ रहा है उसको हम कहेंगे error due to variance, the error from sensitivity to small fluctuation in the training set. High variance can cause an algorithm to model the random noise in the training data rather than the intended output overfitting. ठीक है, तो the bias error is the wrong assumptions that you have and it is going to result in underfitting. The variance error is this error from the sensitivity of your prediction algorithm to small fluctuations in the training set. एंड यूजुअली जब आपके पास अंडरफिटेड एक प्रेडिक्शन या सोल्यूशन है तो वो इट इज विल गिव यू बायस एरर, ओवरफिटिंग इट इज गोइंग टू गिव यू द वेरिएंस एरर। ठीक है, तो दिस इज अंडर बाय ए हाई बायस, दिस इज हाई वेरिएंस एंड दिस इज जस्ट राइट। ओके, व्हाट वी वांट इज कि आपके पास ना ही हाई बायस हो ना ही हाई वेरिएंस एरर आपके पास हो। ठीक है, तो हाउ डू यू एक्चुअली डिसाइड कि आपका जो एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम है उसमें कौन सा एरर है, हाई बायस है, हाई वेरिएंस है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बाय लुकिंग एट योर, अगेन रिमेंबर कि आप अभी आपके पास लेट्स से दो पोर्शन है, एक ट्रेनिंग सेट है और एक वैलिडेशन सेट है, क्योंकि इसी को यूज़ करते हुए आपने ट्रेनिंग करनी है। तो टेस्ट सेट इज सेपरेट, वो तो बाद में हम देखेंगे। तो ट्रेनिंग एरर पे आपके पास कोई एरर आ रहा है, वैलिडेशन एरर पे आपके पास कोई एरर आ रहा है। हाउ डू यू डिसाइड के बाय लुकिंग एट दीज टू एरर्स कि आपका जो मॉडल है इट इज़ ए गिविंग यू हाई बायस एरर और इट्स हाई वेरिएंस इशू। ठीक है, तो नेचुरली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूजुअली यू गेट दी वंस यू डू द ट्रेनिंग, यहाँ हम कह लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल, ऑफ मॉडल कह लें। यहाँ इस जगह पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है, विच मीन्स कि आपके पास ज़्यादा फीचर है, या इसको कह लें कि द डिग्री डी ऑफ योर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन जो आप कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है कि मे बी यू हैव अ मॉडल जिसमें यहाँ आपके पास जो अगर एक हिडन लेयर है तो इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स, दो हिडन लेयर हैं तो मोर कॉम्प्लेक्स, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसी तरह आपके पास हर लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं। तो ये दिस इज व्हाट आई मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूरॉन, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, ऑल दीज विल एड अप टू द कॉम्प्लेक्सिटी। जितना मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा इट विल हैव मोर कैपेसिटी, एज अ रिजल्ट इट मे आल्सो ओवरफिट। तो ट्रेनिंग एरर यूजुअली विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल या द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज गोइंग टू डिक्रीज एज यू इंक्रीज दी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि जितना मॉडल कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो आपका मॉडल जो है इट विल हैव मोर कैपेसिटी टू लर्न द ट्रेनिंग सेट एंड इट मे ओवरफिट। ओवरफिट से आपका ट्रेनिंग एरर तो इट इज गोइंग टू गो टू जीरो, अल्टीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इट क्लोज टू जीरो जा सकते हैं। लेकिन जो आपका टेस्ट एरर या वैलिडेशन एरर है इट इज गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर सम टाइम, जहाँ से आप ओवरफिट करना शुरू हो रहे हैं। तो you can look at these two errors, your cross validation error and your training error. अगर दोनों लेकिन अगर आप इस जगह पे हैं, लेट्स से आप इस लोकेशन पे हैं कि आपका ट्रेनिंग एरर बहुत कम है और क्रॉस वैलिडेशन एरर बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन इजीली सी कि यू हैव ए हाई वेरिएंस प्रॉब्लम या यू हैव ओवरफिटेड टू द ट्रेनिंग सेट। तो इजीली आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने इसी तरह इफ जे ट्रेन और आपका इसी तरह जे ट्रेन जो ट्रेनिंग एरर है और आपका जो क्रॉस वैलिडेशन एरर है वो दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर हाई, समथिंग लाइक दिस है वैल्यू ओवर हेयर, तो दिस इज अंडर फिटिंग। ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ से आपका मॉडल का कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं थी,
So you need to, once you are here, you need to understand, okay, then what I need to do is to increase the complexity of my model. उसमें या तो अगर ज़्यादा लेयर्स ऐड कर दूँ, ज़्यादा न्यूरॉन्स ऐड कर दें. Similarly, you know, if you are in this area कि आपका ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम है, लेकिन ट्रेनिंग एरर is also very small than the cross validation error, then you can easily see कि this is a variance problem या overfitting problem. अब आपको क्या करना है, if you are doing regularization तो मे बी j की वैल्यू को कम को ज़्यादा करना है. ठीक है, इस केस में if your j is let's say 10, तो what you need to do is to decrease the value of j. यहाँ आपको बढ़ाना है, यहाँ आपको decrease करना है. You can easily then do this kind of analysis by looking at the cross validation and training error and you know and on these curves के ये अगर आप इस पोर्शन पे हैं तो इट इज़ हाई बायस, इस एरिया में है तो यू आर इन दी हाई वेरिएंस एरिया. तो आपने उसके लिहाज से कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेप्स लेने हैं. ओके, वी आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो यहाँ से हम बाकी दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. एनी क्वेश्चन? सर ये फिट कब होगा? फिट तब होगा जब आपका जो ट्रेनिंग एरर भी कम है और क्रॉस वैलिडेशन एरर भी कम है और उनकी वैल्यू आपस में भी दे आर क्लोज टू ईच अदर. यू नो द एरिया हियर कि ट्रेनिंग एरर भी कम है, क्रॉस वैलिडेशन एरर भी कम है और इन दोनों का गैप भी कम है. ठीक है, तो उस टाइम पे आप कहेंगे कि आपका मॉडल ठीक है, आपका ना ही हाई बायस है ना ही हाई वेरिएंस है और यू आर गुड. सर जो लैब्स हैं हमारी उसमें हम काफ़ी आगे चल रहे हैं लेक्चर से, तो अब जाके कुछ चीज़ें समझ आती हैं जो हमने कोड में इम्प्लीमेंट की होती हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं. आप लैब्स को अगर थोड़ा लेक्चर के साथ कर दें, पैरेलल कर दें एटलीस्ट, क्योंकि अभी हम काफ़ी आगे जा रहे हैं. नहीं, लैब्स में तो आप मैं लैब तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें मैंने कुछ चीज़ें खुद डाली थी, जैसे कि ये रेगुलराइजेशन, ये चीज़ें खुद मैं पहले इंक्लूड की थी कि एटलीस्ट आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज समझ आ जाए. अगर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं भी आई तो वो हम जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स. इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कोई और कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लैब में पहले किया है. सब यही ये रेगुलराइजेशन और ड्रॉप आउट वाले कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपने पहले किए हैं, राइट? उसके अलावा कोई है ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक हमने लेक्चर में नहीं पढ़ा जो और वो वहाँ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मेरे ज़हन सर में तो प्रिसिजन रिकॉल, ये जो आज हमने वैलिडेशन वाली बात की थी कि अच्छा, आपने हाँ, ठीक है. लैम्डा हाँ, ऐसे चूज़ नहीं करना, वो हमने ठीक है. वैसे ही चूज़ किया था जैसे आपने कहा है कि नहीं करना. ओके, ठीक है, चलें. मैंने वो पहले बना दी, चला. नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि आपको चीज़ें फिर पता हो, वही आगे हम पढ़ें. तो ठीक है, उसको हम जो है आगे से इसी तरीके से करेंगे कि जो हम लेक्चर के बाद फिर आप वो लैब में करें. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो ठीक है फिर, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़.